Hello dear students, in this session we will be taking up some time, speed and distance questions from previous years of XAT examination. So let us start first by reviewing the basics of time, speed, distance in just 1 minute. So that we know that there is only one formula that has to be used time and again, and the formula is time into speed is equal to distance. और 3 cases बनते हैं हमारे. There are 3 cases basically. First case is when time is same, when time is constant in 2 cases. So if time is same या time is constant, in that case speed is proportional to distance, यानी कि जो speed का रेशियो होगा वही हमारा distance का रेशियो होगा. That is our first case. Second case is when speed is constant, and if speed is constant, in that case time is proportional to distance, यानी कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा. ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी हायर. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट is when distance is same in 2 cases. So if distance is same, in that case time into speed is constant because that is equal to distance, and hence time and speed are inversely proportional, which implies कि जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा. Now the questions in that generally are mixed type. एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं, एक से ज़्यादा टॉपिक कई बार मिक्स्ड होते हैं. सो समझते चलेंगे. पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑन द बैंक ऑफ द प्रिस्टीन Tunga river, a deer and a tiger are joyfully playing with each other. The deer notices that it is 40 steps away from the tiger and starts running towards it. So deer is running towards it, and at the same time the tiger starts running away from the deer. Both run on the same straight line. For every 5 steps the deer takes, the tiger takes 6. However, the deer takes only 2 steps to cover the distance that the tiger covers in 3. So in how many steps can the deer catch the tiger? The problem here is कि ना तो यहाँ पे हमें टाइम में वैल्यूज गिवन है, ना तो डिस्टेंस में वैल्यूज गिवन है. वैल्यूज क्या गिवन है हमको? एक तरह से प्रपोर्शन में गिवन है, रेशियो में गिवन है. Isn't it so? तो समहाउ हमें उनको अपना टाइम और डिस्टेंस की वैल्यूज में बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नो कि टाइगर इज रनिंग अवे and deer is going behind him, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 40 steps of deer. That distance is 40 steps of deer. That is first thing. Then we know that at the same time, ठीक है, टाइम सेम है दोनों का स्टार्ट करने का. जब टाइगर दौड़ना शुरू करता है उसी टाइम पे डियर उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है, और जब डियर दौड़ना शुरू करती है तब टाइगर, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं. बोथ फॉर एवरी 5 steps द डियर टेक्स, द टाइगर टेक्स 6. Okay, so for deer and tiger, if deer is taking 5 steps, let us say in a definite amount of time, let us assume कि that definite amount is seconds. So if deer is taking 5 steps per second, in that case tiger is taking 6 steps per second. So unit time is same for both. ठीक है, so ratio उनका है steps का, that is 5:6. Next thing is the deer takes only 2 steps to cover the distance that the tiger covers in 3 steps, विच इम्प्लाइज कि अगर डियर का एक स्टेप का डिस्टेंस जो है दैट इज डी मीटर्स, अगर डियर का एक स्टेप का डिस्टेंस इज डी मीटर्स और टाइगर का एक स्टेप का डिस्टेंस इज टी मीटर्स, वी नो दैट डियर जितना 2 स्टेप में कवर कर रहा है यानी कि 2d, दैट इज सेम एज टाइगर जितना 3 स्टेप्स में कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 3t. यानी कि डी और टी का रेशियो क्या आएगा, इनके स्टेप्स का लेंथ का रेशियो क्या आएगा, दैट विल बी 3:2, 3/2. क्यों हमें स्टेप का रेशियो तो गिवन है कि 5 स्टेप्स डियर चल रहा है सेम टाइम में, उतने ही टाइम में टाइगर 6 स्टेप्स चल रहा है. अब हमें स्टेप की लेंथ का रेशियो भी मिल गया है कि डियर का और टाइगर का स्टेप का लेंथ का रेशियो है 3:2 का. ठीक है, सो ये हमारा आ गया उनका एक तरह से स्पीड है 5 स्टेप्स पर सेकंड, 6 स्टेप पर सेकंड, और ये हमारा है. ठीक है, पर यूनिट एक स्टेप में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ये तो स्पीड है स्टेप पर सेकंड में, और एक स्टेप में कितना लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, यानी डिस्टेंस पर स्टेप. क्लियर है. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा वैल्यू एज सच, स्पीड का वैल्यू एज सच इन द डिस्टेंस पर सेकंड में. तो 5 × 3 विल बी 15, 6 × 3 विल बी 12. तो इनका स्पीड का डिस्टेंस पे रेशियो जो आ रहा है, बिकॉज ये जो स्पीड का रेशियो था ये था स्टेप पर सेकंड में, और अब हमने स्टेप की लेंथ के हिसाब से इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर दिया. तो नाउ द स्पीड इज इन डिस्टेंस पर सेकंड.
दैट रेशियो इज 15:12। क्लियर है? 15:12 का रेशियो है, यानी कि 5:4 का रेशियो है। 5:4 का रेशियो है। दैट इंप्लाइज कि अगर डियर जितने टाइम में 5 मीटर्स चलता है फॉर एग्जाम्पल, एट द सेम टाइम टाइगर इज मूविंग 4 मीटर्स इन दैट सेम टाइम, तो इन 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 सेकेंड का टाइम है तो 1 सेकेंड में 1 मीटर का उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कवर अप हो रहा है, दैट इज कवरिंग अप। इज दैट इट सो? ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन द डियर कैच द टाइगर? कितने स्टेप में डियर टाइगर को कैच कर लेगा? विद दिस सिनारियो, अगर उसका जो डिस्टेंस पर सेकंड आ रहा है दैट 5:4 का वैल्यू आ रहा है, तो कितने स्टेप्स में टाइगर को डियर कैच कर लेगा? तो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5:4, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अगर टाइगर 4 स्टेप्स ऑफ डियर चल रहा है, बिकॉज कंपेरेबल वैल्यूज में हमें बात करनी है, तो 5 और 4 अब कंपेरेबल वैल्यूज हो चुकी हैं उनकी स्पीड की। तो अगर 5 यूनिट्स डियर चल रहा है, उतने ही टाइम में टाइगर 4 यूनिट्स चल रहा है। 40 स्टेप्स ऑफ डियर इज द टोटल डिस्टेंस जो कि कवर अप करनी है। इज दैट क्लियर? उनके बीच का डिफरेंस है, उसी से डिस्टेंस कवर अप होगा, बिकॉज रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर डियर का स्पीड हमारा 5 यूनिट्स पर सेकंड है और टाइगर का स्पीड 4 यूनिट्स पर सेकंड है, तो इन दैट केस उनका जो डिफरेंस है दैट इज 1 यूनिट पर सेकंड, और टोटल चलना है 40 स्टेप्स। ठीक है, सो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 स्टेप्स। इफ दैट इज सो, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 200 स्टेप्स। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा कि डियर को 200 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि तब तक टाइगर कितना चल चुका होगा, तो दैट विल बी 160 स्टेप्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। और अगर समझने में कंफ्यूजन आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस बार वैल्यूज उसकी जगह पे पुट कर देंगे ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आए। बाकी क्वेश्चन ये समझ लो कि रेशियो से तो सबसे बेस्ट है, बट फिर भी एक बार वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। क्या हमें पता है कि डिस्टेंस जो इनके बीच का है दैट इज 40 स्टेप्स ऑफ डियर, और टाइगर आगे चल रहा है और डियर पीछे चल रहा है उसके। नेक्स्ट थिंग वी नो कि फॉर एवरी 5 स्टेप्स द डियर टेक्स, टाइगर टेक्स 6, यानी कि अगर डियर की स्पीड हम मान लें 5 स्टेप्स पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ टाइगर इज 6 steps per second. Now, also we know that deer takes only 2 steps to cover the distance that tiger covers in 3. तो 2 और 3 का LCM हो गया 6। तो हमने ये assume कर लिया कि 2 steps में, 2 deer steps में 6 मीटर्स डियर चलता है, डियर चलता है 6 मीटर्स, यानी कि 1 डियर स्टेप में कितना चलेगा? 3 मीटर्स। और सिमिलरली यही 3 टाइगर स्टेप के बराबर भी है, तो एक स्टेप में टाइगर कितना चलेगा? दैट विल बी 2 मीटर्स। तो यहां से हमें डियर और टाइगर की स्पीड मिल गई। डियर का 5 स्टेप पर सेकंड है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइगर की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ऑल्सो वी नो कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है हमारा 40 डियर स्टेप्स के बराबर, यानी कि 40 इंटू 3 120 मीटर्स का डिस्टेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी स्पीड ऑफ डियर माइनस स्पीड ऑफ टाइगर, दैट विल बी 15 माइनस 12, 3 मीटर्स पर सेकंड। और 3 मीटर्स पर सेकंड में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन विल बी 120 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 120/3 40 सेकंड्स। और 40 सेकंड्स में डियर कितना चलेगा? एक सेकंड में चलता है 5 स्टेप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे डियर के, दैट विल बी इक्वल टू 40 सेकंड इंटू 5 स्टेप पर सेकंड, 40 इंटू 5 200 स्टेप्स। तो अगर रेशियोज में प्रॉब्लम आ रहा है तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट दैट वे। दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छा है, बट ये समझ में आता है तो अच्छी बात है। क्लियर है? ठीक है। एज अ प्रैक्टिस विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति कैन रो अ बोट ऑन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। However, on a given river, it takes her 1 hour more to row the boat up 12 kilometer upstream than downstream. तो on a given river, it takes her 1 hour more to row the boat 12 kilometer upstream than downstream. देखो एनी सच क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या पता है? वी नो दैट स्वाति का स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है? दैट इज 5। तो यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? अपस्ट्रीम होगी, अगर रिवर का स्पीड हम मान लें, लेट अस से x किलोमीटर पर आवर मान लें रिवर का स्पीड, तो अपस्ट्रीम में हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा 5 प्लस एक्स। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? दैट इज 12 किलोमीटर बोथ साइड्स, 12 प्लस 12, तो टाइम टेकन विल बी 12 अपॉन 5 माइनस एक्स, टाइम लगेगा अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज्यादा लगेगा,
तो इसलिए हमने पहले वैल्यू लिखी है -12/5 + x एंड दैट इज इक्वल टू 1। जब भी कभी ऐसा हमारा इक्वेशन बने तो हमेशा याद रखना है कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें इंटीजर वैल्यू लानी है। यहाँ पे ऑलरेडी है, पर अगर नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर 1/2 होता तो हम पहले दोनों साइड में इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब जैसे ही राइट हैंड साइड में हमारा इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद में हमें ये पता है कि जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है यानी 5 - x एंड 5 + x, दे आर ऑलवेज 99% ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट 99% ऑफ द टाइम, और मोस्टली हमारा वही केसेस निकलेंगे, वो हमेशा 12 के फैक्टर्स होंगी। जो वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में गिवन है वो 12 की फैक्टर्स होंगी। आई रिपीट, सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड में इंटीजर प्लेस किया सो दैट आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे कि वैल्यू थोड़ी टिपिकल हो, सबसे पहले इंटीजर बनाओ, उसके बाद 12 के फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3, 4, 6, इजंट इट सो? 2 रखोगे तो पहली वाली वैल्यू 6 आ जाएगी, और 2 के केस में x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x 3 है तो दूसरे वाले में 8 होगा। ठीक है, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करेंगी, जबकि 5 - x हमारा 4 होगा और 5 + x हमारा 6 होगा। 12/4 -12/6 इज इक्वल टू 1, एंड इफ दैट इज सो, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी रिवर की स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में पता चल गया कि अपस्ट्रीम स्पीड है 4 और डाउनस्ट्रीम स्पीड है 6। Now the question is saying, one day Swati rows the boat on this river from x to y, which is n kilometer upstream from x. So x से y तक जाती है. Then she rows back to x immediately. If she takes at least 2 hours to complete this round trip, what is the minimum possible value of n? हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, और हमें कंडीशन गिवन है कि एटलीस्ट 2 आवर्स लग रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली मान लेते हैं कि 2 आवर्स ही लग रहे हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जितना हम टाइम को एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि टोटल उसको राउंड ट्रिप में टाइम लग रहा है कितना, एग्जैक्टली 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। क्लियर है? स्पीड हमें पता है 4 और 6 है, तो स्पीड का रेशियो क्या है 4:6 का, यानी कि 2:3 का रेशियो है, और डिस्टेंस जाते समय और आते समय सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी 3:2 का रेशियो होगा। क्या बात समझ में आती है? 3:2 का रेशियो होगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स हमने ले लिया है, एटलीस्ट है, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू ले लिया। टोटल टाइम यानी कि 5 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी है 120 मिनट्स के बराबर, एंड इफ 5 यूनिट्स इज 120 मिनट्स, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट विल बी 3/5 ऑफ 120 मिनट्स, या 120/60 कर लोगे, आवर में वैल्यू आ जाएगा, और स्पीड हमें पता ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चाहे हम यही बात R2 के लिए कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 6/5 × 4 24/5 विच इज 4.8 किलोमीटर्स, और क्योंकि एक साइड का ही पूछा है, XY का डिस्टेंस पूछा है, n की वैल्यू पूछी है, तो n हमारा आ जाएगा 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर होता है, समझ में आती है बात ये? ठीक है, ओके। क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, हमने डायरेक्टली इसको इनइक्वालिटी के चक्कर में नहीं पड़े, हमने सीधे से मिनिमम वैल्यू इसलिए मान ली कि एटलीस्ट जो हमारा मिनिमम टाइम होगा उसमें ही डिस्टेंस कवर्ड मिनिमम होगी। इज इट क्लियर? तो इनइक्वालिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं, क्या लिखते हैं, लेट अस से डिस्टेंस हमारी d है, तो d/4 प्लस d/6, d नहीं n ही वैल्यू है तो n ही लिख देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा टाइम मिनिमम लग रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद में हम d को कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो d × 6 + 4/24, चलो 4 और 6 ले लिया तो यही लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ से फिर वैल्यू आ जाएगी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48/10, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8, या फिर d की जगह n होता, तो यहाँ से भी हमें पता है कि वैल्यू हमारी 4.8 आ रही है। बट मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज ऑलरेडी जब हमें इक्वालिटी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि मेरी वैल्यू कब आने वाली है, तो क्यों इनइक्वालिटी में बना के रखें और क्यों इस तरह से सॉल्व करें। इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी तरीके दोनों समझ में आने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट कि ये बात समझ में नहीं आई, तो वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व दैट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स आशीष, ब्रायन, चैत्रा एंड डोरोथी डिसाइड टू जॉग फॉर 30 मिनट्स इनसाइड अ स्टेडियम with a circular running track that is 200 meters long. The friends run at different speeds. Speeds उनकी अलग अलग हैं. Ashish completes a lap exactly every 60 seconds. Likewise, Brian, Chatra and Dorothy complete a lap exactly 1 minute 30 seconds, 40 seconds and 1 minute 20 seconds respectively. The friends begin together at the start line exactly at 4 p.m. What is the total of the number of laps that the friends would have completed when they next cross the start line together? तो यानी कि अगली बार जब वो स्टार्ट लाइन को क्रॉस करेंगे तब कितने स्टेप्स वो टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे, दैट इज द क्वेश्चन।
और अगली बार जब वो स्टार्ट लाइन क्रॉस करेंगे तो मतलब क्या हुआ, यानी कि हर कोई इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट कर चुका होगा। उनमें से सारे के सारे लोग इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट कंप्लीट कर चुके होंगे। इज दैट इट सो? यानी कि हो सकता है किसी ने 5 स्टेप्स कंप्लीट किया, किसी ने 7 किया, किसी ने 9 किया। एग्जैक्ट वैल्यूज की हम बात नहीं कर रहे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, बट सबने इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट किए होंगे, विच इंप्लाइज कि टोटल टाइम टेकन विल बी अ मल्टीपल ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ टाइम। क्या ये बात समझ में आती है? टोटल टाइम टेकन विल बी अ मल्टीपल ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ टाइम। एंड इफ दैट इज सो, और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एलसीएम, क्योंकि लिखा है नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉस करेंगे, यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको चाहिए एलसीएम इन सारी की सारी टाइम की वैल्यूज का, क्योंकि वही लीस्ट मल्टीपल होगा, हमारा काम खत्म हो गया। क्लियर है? तो एक्चुअल में टाइम से डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। एलसीएम लेना है किनके वैल्यूज का? पहली वैल्यू है हमारी 60 सेकंड, आशीष के लिए 60, ब्रायन के लिए दिस इज 1 मिनट 30 सेकंड यानी 90 सेकंड है, फॉर चैत्रा दिस इज 40 सेकंड्स, एंड फॉर डोरोथी दिस इज 1 मिनट 20 सेकंड यानी 80 सेकंड्स। 60 90 40 80, क्या वैल्यू आएगा? 360, 360 नहीं होगा, 720 आ जाएगा। 720 सेकंड्स विल बी अवर एलसीएम। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कि 720 सेकंड्स के बाद में दे विल ऑल बी क्रॉसिंग ईच अदर एट द स्टार्ट लाइन। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे? ए के होंगे 720/60 12 स्टेप्स, बी के होंगे 720/90 8 स्टेप्स, सी के होंगे 720/40 18, and for D this will be 720/80 which is 9. So 12 plus 8 plus 18 plus 9, 12 plus 18 30 plus 17 47 steps, 47 steps नहीं 47 laps हो जाएंगे उनके टोटल। ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? और टोटल टाइम कितना लगा? 720 सेकंड्स का, यानी कि 12 मिनट्स का टाइम लगा है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है, दे विल नेवर बी एट द स्टार्ट लाइन टुगेदर अगेन। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, बिकॉज वो एक सेपरेट टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट इन केस अगर मान लो कोई ऑप्शन होता है कि जहाँ पे लिखा होता है ए एंड डी बोथ, तो हमें वो चेक करना भी, उसको भी देखना भी जरूरी था, बट वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। बट स्टिल एक बार ट्राई कर लिया, टेक चेक कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही, राजेश अ कोरियर डिलीवरी एजेंट starts at point A and makes a delivery each at points B, C and D in that order. He travels in a straight line between any two consecutive points. The following are known. A, B and C, D intersect at right angle at point E, and B, C, C, E and E, D are respectively 1.3 km, 0.5 km and 2.5 km long. If AD is parallel to BC, then what is the total distance in kilometers that Rajesh covers in traveling from A to D? This is actually a question, more a question of geometry than टाइम स्पीड डिस्टेंस, बट सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए बी और सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ राइट एंगल्स। ठीक है, एक पर्सन राजेश है जो कि स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, एंड ही इज मेकिंग अ डिलीवरी ईच एट पॉइंट बी, सी एंड डी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगी इस केस में? दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू डी। सो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, यही हमें निकालना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। So let us say this is AB and this is point C and this is point D. Okay, they are intersecting at E, तो this is point E. राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल्स ये राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट इज BC, CE एंड ED आर रिस्पेक्टिवली। सो BC की वैल्यू हमें गिवन है कितना? दिस इज BC एंड BC इज इक्वल टू 1.3 किलोमीटर्स। CE इज 0.5 किलोमीटर्स and ED is 2.5 kilometers. Also, AD is parallel to BC. So, AD और BC parallel है। और हमें अब निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड राजेश की होगी कितनी। देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ समझना है, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.5, CE इज 0.5 एंड CB इज 1.3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1.3 आ रही है। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है 5:12:13 वाला ट्राइंगल? इजंट इट सो? इफ दैट इज सो, तो BE डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 1.2। क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट वी नो दैट AD इज पैरेलल टू BC एंड इफ दैट इज सो, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल हियर, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड हेंस ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। इजंट इट सो? और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनके साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा, साइड्स का रेशियो सेम होगा इनका। क्या ये बात क्लियर है?
एंड इफ दैट इज सो वी नो कि CE अपॉन DE that will be equal to AE, sorry, that will be equal to BE upon AE. क्लियर? या फिर लिख सकते थे CE अपॉन B इज इक्वल टू DE अपॉन AE. अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स में जब भी आप रेशियो लिख रहे हो तो एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना, बिकॉज कई बार गड़बड़ क्या हो सकता है कि रेशियो लिखने में उल्टा रेशियो लिख दो. ठीक है, तो एक डायरेक्शन में कर सकते हो चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल कि हमें रेशियो बनाना है सिमिलर ट्रायंगल, तो हमें पता चल गया कि ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE. अब ए में कौन सा एंगल लिया? ये वाला एंगल लिया है, तो अब यहाँ पे भी सबसे पहले यही वाला एंगल लेंगे, और इस सिमिलर टू ट्रायंगल B, फिर D यानी C, BCE, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर हम वैल्यूज ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिया लेट अस से AE, ठीक है, तो यहाँ पे लोगे BE, सो AE अपॉन BE विल बी इक्वल टू, इस पे लोगे DE, तो यहाँ पे लोगे CE, तो DE अपॉन CE. ठीक है, तो ऑर्डर ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी. अदरवाइज कई बार ये गलती हो जाएगी कि D अपॉन C की वजह से C अपॉन D कर दोगे या कुछ और कर दोगे. क्लियर है? तो ये हमारा रेशियो का वैल्यूज आ गया, और इससे हमें पता है कि इफ दिस इज 0.5 एंड दिस इज 5 टाइम्स 2.5 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इफ दिस इज 1.2 तो ये वैल्यू 5 टाइम्स होगी, यानी कि 6.0 होगा. AE विल बी 6.0. क्लियर? अब AB, BC और CD डिस्टेंस हमें निकालनी है. AB वैल्यू कितनी आ रही है? AB इज 7.2, BC is 1.3 एंड CD इज 0.5 प्लस 2.5 यानी कि 3.0. टोटल आ जाएगा 7 + 1 8 + 3 11.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस. दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन C. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. At the same time, Ram travels straight north at a speed of 10 km per hour, while Shyam travels straight east at twice the speed of Ram. So Ram जा रहा है नॉर्थ की तरफ और श्याम जा रहा है ईस्ट की तरफ. दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट. स्पीड ऑफ राम इज 10 km per hour and speed of Shyam is 20 km per hour. Then we know कि while Shyam travels straight at the fine. After 15 minutes, Shyam messages Ram that he is just passing by a large telephone tower. कितने टाइम बाद? 15 मिनट्स के बाद में. 20 किलोमीटर 1 आवर में श्याम चल रहा है, तो 15 मिनट्स में यानी कि 1/4 ऑफ आवर में चलेगा 5 किलोमीटर्स. सो 5 किलोमीटर्स के बाद में देयर इज अ टेलीफोन टावर. ओके, देन आफ्टर अनदर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट हो गए, फिर और 15 मिनट यानी 30 मिनट्स के बाद में, टोटल स्टार्ट से 30 मिनट के बाद में, राम इज मैसेजिंग श्याम दैट ही इज जस्ट पासिंग बाई एन ओल्ड बनियान ट्री. 30 मिनट्स में राम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 5 किलोमीटर्स, बिकॉज उसकी स्पीड 10 है. और 5 किलोमीटर के बाद में उसको एक क्या मिला है? एक ट्री मिला है. ठीक है, एक ट्री मिला है, बनियान ट्री. दिस इज 5. आफ्टर सम मोर टाइम हैज elapsed, राम एंड श्याम बोथ स्टॉप. दे स्टॉप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सेम टाइम के बाद में वो स्टॉप किए हैं. टाइम सेम है दोनों के लिए. अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होंगे उनका रेशियो क्या होगा? उनकी स्पीड के रेशियो में ही होगा, यानी 1:2 के रेशियो में ही होगा. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम इज 50 किलोमीटर्स, सो इफ लेट अस से दिस इज द पोजीशन ऑफ राम, दिस इज द पोजीशन ऑफ श्याम, so this distance is given as 50 kilometers. एंड वी नो कि इनका स्पीड का रेशियो है 1:2 का, तो यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो 1:2 का ही होगा. डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो 1:2 का ही होगा. तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है बेसिकली क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरह से. सो इफ दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, तो हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि दिस विल बी √5 यूनिट्स. और √5 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी दी है? 50. इफ √5 यूनिट्स की वैल्यू 50 दी है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी. 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √5, विच इज 10√5 kilometers. So this distance of Ram will be 10√5 kilometers. And similarly this distance of Shyam, जो डिस्टेंस श्याम ने ट्रेवल किया, दैट विल बी 20√5 किलोमीटर्स. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ फार इज श्याम फ्रॉम द बनियान ट्री. श्याम की डिस्टेंस टावर से नहीं पूछ रहा है. श्याम की डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है? बनियान ट्री से डिस्टेंस पूछ रहा है. ठीक है, बनियान ट्री से डिस्टेंस पूछ रहा है. इज दैट इट? सो क्या वैल्यू आएगी? विच मीन्स कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है. सेपरेट ट्रायंगल बना लेते हैं.
तो दिस इज बनियान ट्री, और यहाँ से डिस्टेंस पूछा, दिस डिस्टेंस इज 5, दिस इज 20√5, तो हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? अगेन यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमेशा हर एक केस में क्या करो, यहाँ भी रेशियो देखो, रेशियो कितना है, दिस इज 5, दिस इज 20√5, यानी कि रेशियो आ रहा है 1, दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 4√5, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4√5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 16 × 5 80, 4√5 का स्क्वायर विल बी 80, 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो 80 + 1 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 81 का स्क्वायर रूट, यानी कि विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं रेशियो में, इसलिए वैल्यूज को लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन हमेशा सिंपल रहे। जितना हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दिया हो, अगर इससे मुश्किल वैल्यूज भी होंगी तो भी हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको कम से कम रखें। अदरवाइज जितनी हम बड़ी वैल्यूज लेंगे उनका स्क्वायर करेंगे, अननेसेसरी अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रेशियो में ही सॉल्व करो, ठीक है। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 5 किलोमीटर्स, सो 9 यूनिट हो जाएगा 9 × 5 विच इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। आवर आंसर विल बी 45, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या समझ पा रहे हो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, सो दैट हमारे लिए क्वेश्चंस में कैलकुलेशन हमेशा आसान रहे, और हम कॉन्सेप्चुअली कहीं भी गलती ना करें, कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से भी हमारा क्वेश्चन हमें कॉस्ट ना हो जाए, पता चला कोई और ऑप्शन पे अटक जाए जाके, क्योंकि एग्जामिनर ने जो भी ऑप्शन दिए होंगे बाकी वो भी सोच समझ के ही दिए होंगे, कहीं पे गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं और पहुंचेंगे। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, कि अगर हम 20√5 की जगह गलती से 10√5 ले लेते, ठीक है, 10√5 ले लेते, तो फिर हमारा रेशियो में जो वैल्यू आई है 80, इसकी जगह पे क्या आता, 20 आता, इसकी जगह पे वैल्यू 20 आता, और ये √21 हो जाता, तो उस केस में हमारा ऑप्शन सी आ जाता। सिमिलरली अगर कोई डायरेक्टली ऐड करेगा तो 5 + 20√5, वो भी ऑप्शन गिवन है। तो सारा एग्जामिनर ने सोच के रखा हुआ है, सोच सोच के ऑप्शन दिए हैं कि जो गलती करोगे तो भी ऑप्शन कोई ना कोई तुम्हारा कैच कर ही जाएगा और तुम्हारे मार्क्स लेके चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज, नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल इन द सेंस कि इसमें टाइम लगेगा और मैनुअली ही इसको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, पहले पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, टाइम लेना है, समय लगेगा, ठीक है। और एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में और टाइम लगता है, गलती होने का स्कोप भी रहता है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को स्किप मारना है, स्टार्ट में अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम खाएगा और फालतू में टाइम खाएगा, कंफ्यूज भी करेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेडेक ऐसा लेने का, स्पेशली एग्जाम के बीच में टुवर्ड्स द एंड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जब बाकी क्वेश्चन हो चुका है। हायर एंड टॉर्टोइज रन बिटवीन पॉइंट्स O and P लोकेटेड एग्जैक्टली 6 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हैं O और P, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, दैट इज 6 किलोमीटर्स। देन दे स्टार्ट टुगेदर एट पॉइंट O एंड गो स्ट्रेट टू पॉइंट P एंड देन रिटर्न टू O। यानी क्या स्टोरी है कि जो हेयर और टॉर्टोइज है ये क्या कर रहे हैं, O से P तक जा रहे हैं और फिर P से O तक लौट रहे हैं, ये कहानी है। दे रन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 12 km/h एंड 1 km/h रिस्पेक्टिवली। हेयर की स्पीड है 12, जबकि टॉर्टोइज की स्पीड सिर्फ 1 है, सिर्फ 1, ओनली 1। कितना कम स्पीड है? सिंस द टॉर्टोइज इज स्लोअर देन द हेयर शटल्स बिटवीन O and P until द टॉर्टोइज गोज वंस टू P एंड रिटर्न्स टू O। यानी कि टॉर्टोइज O से P तक जाता है और वापस O तक लौटता है। इतने में कितने टर्न कर लिए होंगे हेयर ने? 12 टर्न्स कर लिए होंगे, 12 बार वो जाके आ गया होगा, इजंट इट सो? 12 टाइम्स जाके आ गया होगा। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछा है, ड्यूरिंग द रन हाउ मेनी टाइम्स आर द हेयर एंड द टॉर्टोइज सेपरेटेड बाय एन एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। During the run, how many times are the hare and the tortoise separated by the exact distance of 1 kilometer from each other? क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? Think about it. सोचते हैं अब इसको। देखो, टोटल 6 किलोमीटर्स को हम 6 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बिकॉज जितने टाइम में जाके हेयर लौटेगा, हेयर की स्पीड 12 km/h, ठीक है, तो वो 1 आवर में जाके 6 किलोमीटर जाएगा और 6 किलोमीटर लौट के भी आ जाएगा, यानी कि 1 आवर में वो एक पूरा चक्कर लगा लेगा, एक पूरा राउंड लगा लेगा। बट 1 आवर में टॉर्टोइज कितना चला होगा? ओनली 1 किलोमीटर, दैट्स ऑल। इतना ही तो चला होगा, ठीक है। तो 6 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब जब चलना स्टार्ट किया होगा टॉर्टोइज ने, ठीक है, टॉर्टोइज साथ में चलना स्टार्ट करेंगे, तो एट द मोमेंट शुरू से ही तड़ से आगे निकल जाएगा हमारा हेयर, खरगोश इजंट सो, एकदम से आगे निकल जाएगा। तो शुरू में पहली बार 1 किलोमीटर का उनके बीच में गैप कब आएगा? जब टॉर्टोइज कहीं बिल्कुल स्टार्ट पे ही होगा और हेयर आगे कहीं पहुंच चुका होगा 1 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आती है? छोटी सी बात है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये पहली बार होगा। इसके बाद में अब जब लौट के आएगा तो हेयर लौट के आएगा, टॉर्टोइज अब कहाँ है? जब वो लौट के आ रहा होगा, तो जब टॉर्टोइज हमारा इस पॉइंट पे पहुंचा होगा,
तब तक हमारा सॉरी जब हेयर हमारा इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, हेयर यहाँ पहुंचा होगा, टॉर्टोइज तो पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस समय हमारा टॉर्टोइज हाफ द डिस्टेंस, उसने हाफ द किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इज इट सो? ठीक है। अब यहाँ से हेयर ने वापस लौटना शुरू किया, तो समवेयर अराउंड टॉर्टोइज हमारा यहाँ कहीं पहुंचने वाला होगा, जबकि हेयर उससे 1 किलोमीटर आगे की डिस्टेंस पे होगा। तो ये सेकंड मुलाकात होगी, ये सेकंड मुलाकात होगी, यानी कि सेकंड 1 किलोमीटर का इनके बीच में गैप होगा। पहला गैप आया यहाँ पे, सेकंड गैप आया यहाँ पे, और थर्ड कब आएगा? जबकि टॉर्टोइज हमारा एग्जैक्टली इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर उसने कवर कर लिया होगा और हेयर स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुका होगा। तो टोटल पहले राउंड में, राउंड 1 में कितनी बार ये डिस्टेंस, कितनी बार ये हुआ, जबकि उनके बीच का डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था? राउंड 1 में ऐसा 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा। इज इट क्लियर? अब राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 कब स्टार्ट होगा? टॉर्टोइज 1 किलोमीटर पे है और हेयर एकदम स्टार्ट पे है। तो ये वाला वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पे 1 किलोमीटर का गैप है। अब इसको दोबारा कैलकुलेट राउंड 2 में नहीं करना है, ठीक है। राउंड 2 में इसको कैलकुलेट नहीं करना है। अब जब राउंड 2 में हम देखेंगे इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, तो अब जब हेयर आगे निकलेगा इससे, यानी टॉर्टोइज हमारा यहाँ कहीं पे होगा इस पोजीशन पे, और हेयर इससे आगे 1 किलोमीटर आगे होगा। ये पहली बार होगा, जबकि राउंड 2 में इनके बीच में जो गैप है वो 1 किलोमीटर का आएगा, और फिर लौटते समय 2 बार आएगा। जब लौट रहे होंगे यहाँ कहीं पे हमारा टॉर्टोइज होगा, ठीक है। तो हेयर इधर कहीं पे होगा, तब एक बार गैप होगा, और एक बार जब इससे पीछे जाएगा तब गैप होगा, यानी कि 2 टाइम्स गैप आएगा राउंड 2 में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। राउंड 1 में 3 बार आया, राउंड 2 में भी 3 टाइम्स आया। राउंड 3 में, अब जब राउंड 3 में ये आ गए हैं, तो हमारा टॉर्टोइज अब इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, 2 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है। अब जब पीछे से हेयर दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो अब हर राउंड में जाते समय भी 2 बार इनके बीच में 1 किलोमीटर का गैप आएगा, और लौटते समय भी 2 बार आएगा। यानी कि इस पॉइंट के बाद में अब अगर इमेजिन करोगे, तो अराउंड हमारा टॉर्टोइज जब यहाँ पे होगा, 1 किलोमीटर पीछे हेयर होगा हमारा, तब भी एक बार ये 1 किलोमीटर का गैप आएगा, और थोड़ा सा आगे पहुंचा होगा टॉर्टोइज हमारा, और फिर हेयर आगे होगा, तब भी एक बार 1 किलोमीटर का गैप आएगा। और सिमिलरली लौटते समय भी ये कहानी होगी, यानी कि राउंड 3 में ऐसा 4 बार होगा, जबकि इनके बीच में 1 किलोमीटर का गैप होगा। सिमिलरली राउंड 4 में भी ऐसा 4 बार होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। फिर राउंड 5 में भी ये चीज 4 टाइम्स होगी, राउंड 5 में 4 टाइम्स होगी। राउंड 6 में अब हमें ध्यान देना है। अब जब राउंड 6 में होगा, टॉर्टोइज यहां पहुंच चुका होगा, बस उसके लिए 1 किलोमीटर और आगे जाना बाकी है, 1 किलोमीटर और उसके लिए बचा हुआ है, और अब हेयर पीछे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो पहली बार इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कब आएगा? जबकि हेयर यहाँ कहीं पे पहुंच चुका होगा, सॉरी टॉर्टोइज यहाँ कहीं पे पहुंच चुका होगा, और हेयर पीछे की तरफ होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तब गैप आएगा इनके बीच में 1 किलोमीटर का, और फिर टॉर्टोइज थोड़ा आगे निकल चुका होगा, हेयर यहाँ से आगे तक जाएगा, और फिर लौट के आएगा, और फिर जब पीछे आएगा तो एक बार फिर से इनके बीच में 1 किलोमीटर का गैप आएगा, यानी कि सिर्फ 2 बार। और ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो छोटी सी बात समझनी है। जब पहला हमने राउंड देखा, राउंड 1 देखा, तो राउंड 1 में टॉर्टोइज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे था हमेशा। क्या ये बात समझ में आती है? स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे था हमेशा, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द राउंड 1, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द राउंड 1। एट द एंड ऑफ द राउंड 1 एक्जैक्टली उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुआ, यानी कि उससे पीछे 2 बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि जबकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस उनके बीच से निकला। वो कब निकला? वो जब बाद में था, आगे था हेयर हमारा, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर से आगे वाले डिस्टेंस पे था, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय, 2 बार तब हुआ, और एक बार जबकि टॉर्टोइज ने पहले राउंड में 1 किलोमीटर कंप्लीट किया। 3 बार आया राउंड 1 में। लेकिन राउंड 5 में जब 6 में, जब राउंड 5 तो हो गया, राउंड 6 में जब हम बात करेंगे, यानी कि लास्ट के 1 किलोमीटर में जब हम बात करेंगे, इस स्ट्रेच में बात करेंगे, दिस इज राउंड 6। तो जब राउंड 6 में बात करेंगे, तो अब ऑलरेडी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम होता जा रहा है। तो बाद में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हेयर और टॉर्टोइज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उससे कम डिस्टेंस हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो वहां पे 2 बार ऐसा होगा राउंड 6 में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और फिर जब टॉर्टोइज लौटना स्टार्ट करेगा, तो फिर सेम स्टोरी रिपीट होगी, फिर सेम स्टोरी रिपीट होगी। और अगेन हमें ये कितने मिले हैं टोटल? जाते समय कितने मिले हैं? 3 + 3 6, 6 + 12 18 + 2 20। जाते समय टोटल 20 टाइम्स ऐसा हुआ है, तो लौटते समय भी टोटल 20 टाइम्स ऐसा होगा। आंसर आएगा हमारा 20 + 20, यानी कि 40 टाइम्स इनके बीच में ये कोइंसिडेंसेस बनेंगे। आंसर विल बी 40, ऑप्शन ए। बहुत मैनुअली इसको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और तरीका नहीं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे कुछ भी। तो क्या ये तरीका समझ में आ रहा है? क्या इसको समझ पाए हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? थिंक अबाउट इट। कॉशियस रहना है स्टार्ट में, पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, और फिर लास्ट राउंड में। बीच वाले राउंड में तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में तो हमें पता है कि वहां पे तो टोटल 4 बार ये केस बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है,
और सेकंड वाले में इसलिए कॉशियस रहना है क्योंकि सेकंड वाले का जो पहला वाला हमारा बेसिकली सेकंड वाले में भी 4 ही आ रहे हैं, बट सेकंड का जो फर्स्ट है वो ओवरलैप कर रहा है राउंड 1 के लास्ट वाले से। राउंड 1 में जो 3 हमारे डिस्टेंसेज आए हैं एग्जैक्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर के, तो राउंड 1 वाला जो थर्ड वाला एग्जैक्ट 1 वाला है वो राउंड 2 के फर्स्ट वाले से ओवरलैप कर रहा है। एक तरह से इस बात को अगर समझो तो हो ये रहा है, इस बात को समझ लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कि राउंड 1 में एक तरह से 2 ही आ रहे हैं हमारे मौके, राउंड 2 में 4, राउंड 3 में 4, राउंड 4 में 4, राउंड 5 में 4 और राउंड 6 में लास्ट में 2। तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर ओवरलैप को हम राउंड 2 में कंसिडर कर लें तो 2 से लेके 5 तक तो सेम स्टोरी है हमारी, राउंड 1 में 2 आ रहे हैं और राउंड 6 में 2 आ रहे हैं, तो टोटल हमारा ये स्टोरी बन रहा है। इज इट क्लियर? यानी कि हमें कॉशियस रहना है कहाँ पे, राउंड 1 में और राउंड 6 में। लेकिन फिर उस केस में जो राउंड 1 के एंड में आ रहा है उसको राउंड 2 में काउंट करोगे, तब फिर सारे राउंड को एक साथ ले सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी समझ तो गए ही होगे कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में बिल्कुल लास्ट के लिए रखना है अगर करना है तो, बीच में अपने दिमाग की माथापच्ची नहीं करनी है, अदरवाइज जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वहां पे भी पंगा होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रहीम इज राइडिंग अपस्ट्रीम ऑन अ बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो डेटा सफिशिएंसी के जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें क्या देखना है कि डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक इक्वेशन दी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्वेश्चन हमसे पूछे कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, क्या यूनिक वैल्यूज हम बता सकते हैं? एक ही इक्वेशन है, क्या यूनिक वैल्यू बताई जा सकती है? नहीं बताना पॉसिबल है। ठीक है, इनफाइनटली मेरे सॉल्यूशंस आएंगे, x इक्वल टू 1 हो सकता है, y इक्वल टू 4 हो सकता है, x इक्वल टू 2 हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, तो क्या यहां से हम y की वैल्यू बता सकते हैं यूनिक? क्या y की यूनिक वैल्यू बताना पॉसिबल है? x की वैल्यू तो निकल आएगी यहां से, x इक्वल टू 2 आ रहा है, बट क्या ऐसे y की वैल्यू बताना पॉसिबल है? नहीं बता पाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली y प्लस जेड 3 आ रहा है, बट y के लिए एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे पास जितने भी अननोन वैल्यूज होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 अननोन है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, बट इससे x की वैल्यू हमें पता चल जा रही है, x की वैल्यू पता चल जा रही है। तो बस इन चीज़ों के लिए कॉशियस रहना है और कभी भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है डेटा सफिशिएंसी में, एज फार एज पॉसिबल। उसके बिना ही देखना है कि क्वेश्चन हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, अब इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। रहीम इज राइडिंग अपस्ट्रीम ऑन अ बोट। अपस्ट्रीम जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ कांस्टेंट स्पीड। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 30 किलोमीटर। सो ए भी हमें गिवन है 30 किलोमीटर, फाइन। देन क्वेश्चन इज सेइंग 1 मिनट आफ्टर रहीम लीव्स फ्रॉम पॉइंट ए अ स्पीड बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू गो टू पॉइंट बी। 1 मिनट आफ्टर रहीम लीव्स फ्रॉम पॉइंट ए। रहीम जब ए से 1 मिनट आगे निकलता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमें नहीं पता, बट उसके बाद में एक स्पीड बोट पीछे से चलना स्टार्ट करती है ए से बी की तरफ। इट क्रॉसेज रहीम्स बोट आफ्टर 4 मिनट्स, यानी कि हमें देखो टाइम की वैल्यूज दोनों केसेस में गिवन है। पहले रहीम ने जब पॉइंट ए से लीव किया उसके 1 मिनट के बाद में स्पीड बोट ने चलना स्टार्ट किया, फिर स्पीड बोट क्रॉस करती है रहीम को 4 मिनट्स के बाद में, यानी कि हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, क्या नहीं गिवन है अभी तक? अभी तक हमें स्पीड की वैल्यू नहीं गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ स्पीड बोट इज कांस्टेंट फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज रहीम्स स्पीड इन स्टिल वाटर? रहीम की स्पीड स्टिल वाटर में पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। स्टेटमेंट ए 1 कह रहा है हमसे स्पीड ऑफ द स्पीड बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। दैट इज फर्स्ट थिंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें क्या पता है? स्पीड ऑफ स्पीड बोट पता है, बट हमें स्टिल वाटर की स्पीड अभी भी नहीं पता है। और जब तक हमें स्टिल वाटर की स्पीड नहीं मिलेगी तो हम दोनों के वैल्यूज को कंपेयर कैसे कराएंगे? यानी रहीम की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या पता है? हमें टाइम की वैल्यूज तो पता है, टाइम की वैल्यूज पता है। देखो हमें क्या पता है बेसिकली कि लेट अस से दिस इज रहीम का बोट और ये स्टार्ट में मोटर बोट है, तो 1 मिनट में जितना डिस्टेंस रहीम की बोट ने ट्रैवल किया होगा यही डिस्टेंस तो कवर अप होगा बाद में रिलेटिव स्पीड से। इज दैट सो? बेसिकली जब दोनों बोट्स आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो रहीम की बोट 5 मिनट चली होगी, 5 मिनट चली होगी, और मोटर बोट चली है कितना? 4 मिनट चली है। सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस सेम है, तो जो इनका टाइम का रेशियो होगा उसका ऑपोजिट इनका, उसका उल्टा इनका रेसिप्रोकल उनका स्पीड का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो आ रहा है रहीम की बोट का और मोटर बोट का, टाइम का रेशियो है 5:4 का, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:5 का। बट ये दोनों अपस्ट्रीम जा रही हैं और ये अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है, ये रहीम की बोट और मोटर बोट की स्पीड का रेशियो नहीं है, ये अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पे एक और अननोन है, वो है हमारा स्पीड ऑफ द रिवर। तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, सिर्फ इक्वेशन, सिर्फ क्या हमारे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से निकल सकता है? नहीं निकल सकता, ये तो पक्का है।
तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे रहीम टेक्स 3 आवर्स टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। 3 आवर्स लगते हैं रहीम को टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि इससे हमको क्या मिल जा रहा है, इससे हमें रहीम के केस में वैल्यू मिल जा रहा है किसका, अपस्ट्रीम स्पीड का। अगर सिर्फ हम स्टेटमेंट सेकंड लेते हैं तो हमें रहीम के केस में अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा, बट पंगा ये है कि हमें मोटर बोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और हमें मोटर बोट की तो खैर जरूरत भी नहीं है, पर हमें रिवर की स्पीड भी तो नहीं पता है। तो हम रहीम की अपस्ट्रीम स्पीड तो निकाल पाएंगे, पर जब हमें रिवर की स्पीड नहीं पता है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अकेला सेकंड स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है। क्लियर। अब अगर दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर दें तो अब हमें रहीम का अपस्ट्रीम स्पीड तो पता चल गया, क्या है वो 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर है। रहीम का अपस्ट्रीम स्पीड पता है, यानी कि एक इक्वेशन पता है हमें। अभी भी हमारे पास अननोन क्या है, 2 अननोन है हमारे पास। एक अननोन है रहीम की बोट की स्पीड और दूसरा अननोन है रिवर की स्पीड। 2 अननोन है, एक इक्वेशन तो हमारी मिल गई इस सेकंड वाले से। इस सेकंड वाले से एक इक्वेशन मिल गई कि अगर रहीम की स्पीड हमारी लेटर से आर है, बोट का स्पीड, और रिवर की स्पीड जो है वो एक्स है, तो आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स क्योंकि अपस्ट्रीम है, तो आर माइनस एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, दैट इज इक्वल टू 10, 30/3 यानी कि 10। और सेकंड हमें पता है स्पीड ऑफ द स्पीड बोट इन स्टिल वाटर, और हमें रेशियो पता है स्पीड बोट का अपस्ट्रीम स्पीड का, और रहीम का अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो पता है। इनका रेशियो से हम कनेक्ट कर ले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा इस क्वेश्चन में। कनेक्ट कर ले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने से हमारा सॉल्व हो जाएगा। करना होगा तो क्या करेंगे तब देख लेते हैं। हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी 10 है, दिस इज इक्वल टू 10, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड की ये सब अपस्ट्रीम स्पीड है हमारी। दिस इज 10, so this will be 12.5, and this is what 30 माइनस रिवर का स्पीड, दैट इज 12.5, यानी कि यहां से रिवर की स्पीड मिल जाएगी 17.5 किलोमीटर पर आवर। और ये 10 क्या है, दिस 10 इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, यानी कि आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स, सो 10 प्लस 17.5 यानी कि 27.5 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी स्पीड ऑफ रहीम्स बोट इन स्टिल वाटर। बट ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में हमें एक बार समझ में आ गया कि ये सॉल्व हो जाएगा, सो दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद में सीधे आंसर मार्क करना है और अगले क्वेश्चन पे चलना है। क्लियर है। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। आई बिलीव कि सेशन आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और आज से विल ट्राई कि हर रोज हम ऐसे 5-10-15 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के प्रैक्टिस करते रहें, और ऐसे 2 सेशन 1 सेशन जरूर रोज अपलोड करते रहेंगे। अभी आज रात तक एक और सेशन आ जाएगा। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है। अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो जरूर पूछना है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस को और मिसलिनियस हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपका जो पकड़ है इन क्वेश्चंस में वो मजबूत बने, बेटर हो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन अदर सेशन।